Okay, let's start class. So now we need to know about cash management. ठीक है कि कैश जो है इसको मैनेज कैसे करें. अब सबसे पहले ये बात याद रखिए, कैश सबसे अट्रैक्टिव चीज है and it is something which can be stolen. People embezzle that because it's very attractive. Have you ever heard the sound of fresh coins or the smell of fresh notes? Yes. It's very tempting. Have you seen new notes? Yes, sir. कितनी tempting होती है. That's why people steal it. ठीक है, इसलिए इसको लोग चुराएंगे आपसे. तो आपने इसके लिए कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं ताकि आप इसको मैनेज कर सके, इसको बचा सके. Accurately account for cash. You must accurately account for cash. जितने पैसे आ रहे हैं, जितने पैसे जा रहे हैं, कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर है, कैश इन, कैश आउट, each and everything should be recorded. Okay, prevent theft and fraud. Obviously, you need to prevent theft and fraud, and since it's liquid, it is the most liquid asset, तो इसका चोरी होने का चांस सबसे ज्यादा है. अगर कोई आपसे मार्केट चुराएगा तो वो जाकर उसको बाजार में बेचेगा. It will take time. लेकिन कोई अगर आपसे कैश चुराएगा तो वो डायरेक्ट उस कैश को इस्तेमाल कर सकता है. That's why it's more susceptible to theft and fraud. Okay? Assure the availability of adequate amounts of cash. This is what we have already discussed before in the previous class. कि इतना कैश होना चाहिए कि अगर मेरा कर्जदार आए तो मैं उसको पैसे दे सकूं. Okay? Avoid unnecessarily large amounts of idle cash. Now this is good. पैसे अपने पास नहीं रखने, वो कुछ नहीं करेगा, पैसे बच्चे नहीं देते, पैसे ज्यादा नहीं होते. ठीक है? Invest it somewhere so that you can get return on it. इसलिए हमने कहा था जब भी idle cash होगा, what will we do? We will invest it in marketable securities. ठीक है? Short term investments. कहीं भी इसको इन्वेस्ट करें ताकि उससे कोई पैसे मुझे आ जाए. And right now the situation in Pakistan is that it's inflation. तो अगर आपने रख दिया अपने पास तो वैसे ही उसकी वैल्यू डाउन. ठीक है? So now, make sense? Yes. Okay, so let's move on. Using excess cash balances efficiently. Now, how would you do that? ये सारी बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक दफा फिर इसको देख लेते हैं. Now, cash available for long-term investment. If it's long-term cash which is available, that means in the near future you do not intend to use the cash. आपको कोई जरूरत नहीं है कैश की, और ये नहीं कि शायद एक हफ्ते बाद जरूरत पड़ जाए. मैं कहता हूँ यार 2-3 साल तक तो जरूरत नहीं चाहिए. अगर नहीं चाहिए आपको पैसे तो ज्यादा टाइम के लिए, so then it is available for long term investment. That means you can invest it in something which is a longer term period. उसको ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ. ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी कौन सी है? May be used to finance growth and expansion of the business. अपने बिजनेस के लिए एक्सपैंड करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ग्रो करने के लिए. Start a new product. I have enough cash with me. Let's start a new product. I have enough cash with me. Let's start a new branch. नई जगह स्टार्ट कर लेते हैं. I have enough cash with me. यार मार्केट्स का काम करते हैं, थोड़ा सा मार्केट्स की मार्केट खराब है, या मार्केट्स चलो चल रहे हैं, बस अच्छे चल रहे हैं, सही है, मार्केट बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी है, मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन सर्दी आ गई है, so यार लेट्स इन्वेस्ट इन हीटर्स. गुड आइडिया. ठीक है? आप अनरिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. आप कहते हैं यार मार्केट्स बना रहा हूँ, लेट्स इन्वेस्ट इन पेंसिल्स. ठीक है? इन्वेस्ट कर दें आप. So it is available for long term. Then you go for growth and expansion or repay your debts. जो आपके debts हैं ना, कर्ज हैं, उनको repay कर दें, वापस पे. ठीक है? This is for long term. But if it is needed for cash, not needed for business purposes, should be distributed to the company's stockholders. लेकिन अभी भी अगर आपके पास available cash है और आपको business की expansion के लिए भी नहीं चाहिए, तो फिर आप कहते हैं चलो यार वो जो मेरे स्टॉक होल्डर्स हैं, who are the real owners, उनको as a dividend पैसे दे. So then you give that to the stockholders of the company who are actually the real owners as dividend. सही है? सही जा रहे हैं? Okay. So now let's talk about internal control over cash. अब कंट्रोल कैसे रखें कैश के ऊपर? हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस कैश को कैसे कंट्रोल करें? हमने कहा कि लोग चोरी करते हैं यार, ये बहुत खतरनाक चीज है, तो इसके लिए क्या करें? Segregate authorization, custody and recording of cash. Keep this thing in your mind that you need to do segregation of duties. इसको बोलते हैं segregation of duties. यानी हर ड्यूटी अलग अलग बंदे की. ऐसे ना हो कि कैश भी मास के पास पड़ा हो,
इसकी जर्नल एंट्री भी मास रिकॉर्ड करे, इसकी ऑथराइजेशन भी मास दे, मतलब अगर किसी को पैसे चाहिए तो मास कहे कि हाँ ठीक है दे दो तुम पैसे, इतने पैसे खरीद के ले आओ मटेरियल, इतने पैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करो, इतने पैसे ये करो। अगर ये सब कुछ मास के पास होगा, देयर आर मोर चांसेस ही कैन कमिट फ्रॉड। सब कुछ उसके पास है, वो रिकॉर्डिंग कर देगा कम पैसे की, कम पैसे मेरे पास आए, और जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो जेब में डाल देगा। You can do that. So you need to segregate the duties. एक बंदा एक काम करेगा, रिकॉर्ड करेगा, एक बंदा पेमेंट को रिसीव करेगा, एक बंदा पेमेंट की एक पेमेंट्स करेगा, एक ऑथराइजेशन करेगा। अब जो ऑथराइजेशन करेगा वो पेमेंट नहीं कर रहा, एक्चुअली पेमेंट किसी और के पास पड़ी है, ठीक है। जो ऑथराइजेशन करेगा वो रिसीव नहीं करता कैश, ठीक। जो ऑथराइजेशन करेगा वो रिकॉर्ड नहीं करता, रिकॉर्डिंग कोई और बंदा करता है। तो इस आपने सब चीजों को अलग अलग रखना है। दैट्स हाउ यू कैन have control over cash. Prepare a cash budget. This is the best thing to do. अब मैंने कहा ना कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना कैश आएगा, कितना कैश जाएगा. This is called as cash budget. A cash budget is the same as your cash flow statement, which is expected, estimated cash flow statement, और a budgeted cash flow statement. तो अगर आप ये चीज बना दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कैश आना है, कितना कैश जाना है। अगर आपको ये पता हो कि कितना कैश आना है, कितना कैश जाना है, तो आपको पता होगा कि कितना कैश फालतू है। तो जितना फालतू है उसको आप लगा सकते हैं, टेम्पररी है तो टेम्पररी चीजों पे, और अगर नहीं लॉन्ग टर्म अवेलेबल है तो एक्सपेंशन पे लगा, नई मशीन खरीद। मार्केट की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, मेरे पास इतनी मशीन अच्छी नहीं है, लेट्स गो फॉर न्यू मशीन, बाय न्यू मशीन, ठीक है। सो यू कैन डू एनीथिंग विद दैट। रिक्वायर्ड डेली डिपॉजिट्स, रोज शाम को जितना कैश जमा हो जाए यहां पर मत छोड़ो, ठीक है। डिपॉजिट इन द बैंक, जब पड़ा होगा सामने तो चांस होगा कि चोरी हो जाए, ठीक है। इससे अच्छा इसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं। मेक ऑल पेमेंट्स बाय चेक, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज वुड डू। जो भी पेमेंट्स हैं, ये नहीं कि आप चाय वाले को पैसे दे रहे हैं तो उसको चेक दे रहे हैं, नहीं, वो आपके पास थोड़े से पैसे पड़े होते हैं, 8,000 10,000 पड़े, जिस तरह इस कंपनी के पास पड़े थे 8 लाख पड़े थे, ठीक है। बाकी नहीं है, बाकी जो है वेंडर को पेमेंट करनी है, रॉ मटेरियल के लिए चेक, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है डायरेक्ट बैंक से क्रेडिट, ठीक। कुछ और है चेक, जिसको भी पेमेंट्स करनी है, एम्प्लॉइज को पेमेंट करनी है, सैलरीज देनी है, चेक थ्रू चेक उनके अकाउंट्स में, ताकि मसला ही ना हो, कैश रखने का मसला ही ना हो कि इतना कैश इधर पड़ा है तो चोरी हो सकता है, इधर उधर जा सकता है, ठीक। ओके, वेरीफाई एवरी एक्सपेंडिचर बिफोर पेमेंट। नाउ ऑथराइजेशन हमने ऊपर बात की थी ना कि कौन ऑथराइज करेगा। बिजली का बिल आया, वेरीफाई, ये बिल है, ये है, इसके ऊपर इतने यूनिट्स हैं, इतने पैसे हैं, ठीक है। सप्लायर की पेमेंट करनी है, सप्लायर क्या क्या आया है उसका बिल है, हाँ ये बिल है, ये बिल चेक हुआ था, हाँ वहाँ पे चेक हुआ था, स्टोर में जिसने रखा उससे पता करें कितने स्टोर में यूनिट्स आए, इतने यूनिट्स आए, ठीक है। रेट ये है, वेंडर को फोन करके पता कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, यस दिस इज द रेट, ठीक, इतनी पेमेंट इसको करनी है, चेक लिख के दीजिए, गुड। कहीं पे भी कोई चांस नहीं है फ्रॉड, ठीक है। सो प्रॉम्प्टली रिकंसाइल बैंक स्टेटमेंट्स। अब अगर आपने हर बैंक में पैसे रखे हुए हैं और वहां से पैसे जा रहे हैं और पेमेंट्स भी ज्यादातर बैंक में ही आ रही हैं, सो यू नीड टू रिकंसाइल। रिकंसाइल का क्या मतलब हुआ? मिलाना, क्या मिलाना? दिल से दिल मिले क्या? Okay, so you need to look at your bank statement and your cash record. एक रिकॉर्ड तो मेरे पास है ना कि मैंने हिसाब लगाया ना कि इतने पैसे बैंक से चले गए, इतने पैसे बैंक में आ गए। एक बैंक वाले के पास है, बैंक जो है, बैंक ने अपना भी तो सब कुछ रखा हुआ है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए, इतने पैसे चले गए। बैंक आपको वो स्टेटमेंट भिजवा देता है, जब आपको जरूरत हो आप पूछ सकते हैं, या हर 6 महीने बाद अगर आपने इंस्ट्रक्शंस, if you have given instructions to the bank कि every 3 months I would need a bank statement, so they would send you a bank statement, उसको ले, अपने रिकॉर्ड को निकाले, चेक करेगा, अच्छा इतने पैसे आए, यहाँ पे भी इतने आ गए, इतने यहाँ से गए, इतने यहाँ से चले गए, ये बराबर है। इसका मतलब बैंक का रिकॉर्ड, आपका रिकॉर्ड दोनों सेम, ठीक है, सेम कभी नहीं होते, उसको फिर टैली करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी विल बी डूइंग। अभी हम ये काम करेंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स, ठीक है। ओके, बैंक स्टेटमेंट्स तो सबको पता है ना कि बैंक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं, कैसे ऑथराइज होते हैं, कैसे स्टेटमेंट्स आती हैं, उसमें क्या चीजें लिखी होती हैं।
How many of you own a bank account? कभी देखते हैं उसमें कितने पैसे लिखे हैं? करेंगे या नहीं? सर क्यों? अगर आपके पास पैसे पड़े हैं, इसमें से जितने पैसे आप लगाएंगे, लेट्स से चाय वाले के पैसे, तो क्या मैं उसकी एंट्री नहीं करूंगा कि 100 रुपए की चाय आई, एक्सपेंडिचर एक्सपेंस, ठीक है, चाय एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ठीक, डेबिट कैश क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। आपके पास पैसे आए तो जब आप इसके अंदर पैसे रखेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे नहीं कि कैश डेबिट सेल क्रेडिट, लिखेंगे? यस। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो आपके पास पैसे पड़े हैं फिजिकल, और जो आपका रिकॉर्ड है कैश का अकाउंट, कैश का अकाउंट होता है ना, कैश का एक अकाउंट होता है, ठीक है, और फिर एक फिजिकल कैश है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल काउंट, यानी फिजिकली काउंट करें कितने पैसे। यहां पे पैसे पड़े हुए मेरे पास 1000, मेरा अकाउंट शो कर रहा है 1050। आप कहते हैं यार मैं तो जो पैसे जाते हैं उसको लिख देता हूं, अकाउंट में एंट्री कर देता हूं, फिर ये क्यों इस तरह है? सो दिस इज कॉल्ड एज कैश ओवर एंड कैश शॉर्ट, यानी अगर जब ज्यादा हो जाए कैश, आपके पास ज्यादा पड़ा हो और आपके अकाउंट में कैश कम हो, ठीक है, तो ये चीजें कैश ओवर कैश शॉर्ट होंगी। अब कैश ओवर एंड कैश शॉर्ट अगर कभी आ गया तो फिर क्या होगा? देखिए, ऑन May 5th, X bar Incorporation's cash drawer was counted. ये कैश ड्रॉर, ये जो ड्रॉर है दराज, इसके अंदर मैंने काउंट किया and found to be 10 over, यानी 10 रुपए यहां पर ज्यादा। जो मेरा अकाउंट है कैश का, इसमें मेरे पास बैलेंस आ रहा है, लेट्स से बैलेंस आ रहा है 110 रुपए, ठीक, और मेरे पास जो ड्रॉर के अंदर पैसे हैं वो कितने आ रहे हैं? 120 रुपए। तो आप कहेंगे यार अभी 10 रुपए कहां से आए, नहीं आता रहा, तो आप कहते हैं चलो यार एक ऐसा करता हूं, एक अकाउंट बनाता हूं, कैश ओवर एंड शॉर्ट। हो सकता है वैसे मैंने किसी कस्टमर से लिया हो, कोई चीज बेची हो, मैंने लिखी नहीं होगी, तो ऐसे करेंगे, फिर बाद में टैली कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे और फिर इस डिफरेंस को क्लियर आउट कर लेंगे। अभी इस तरह करते हैं कि दोनों अकाउंट्स को टैली करने के लिए सेम करते हैं, यानी ड्रॉर को और जो कैश का अकाउंट है उन दोनों को सेम करने के लिए लेट्स डेबिट कैश बाय 10। तो आपका अकाउंट कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ड्रॉर में भी 120 पड़ेगी, तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं कैश में यहाँ पे 10 ऐड कर दूं तो फिर इसकी क्रेडिट की एंट्री कहां पे करूंगा? कुछ तो क्रेडिट भी करना है, और क्या पता कल को वो समझ आ गया, कोई कस्टमर आ गया, वो कहे यार मैंने आपको 10 रुपए दिए थे, वो आपने लिखे, वो सॉरी भूल गए, तो फिर वो 10 की एंट्री कैसे करूंगा? तो मैं ऐसे करता हूं कि अभी मैं एक और अकाउंट खोल लेता हूं, कैश ओवर एंड शॉर्ट, ठीक है। इसको मैंने यहां पे डेबिट कर दिया, तो इसको यहां पर क्रेडिट कर दिया, और फिर जब कभी याद आ गया कि ये क्या चीज थी, तो इसको दोबारा यहां पर, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। और वो किसी कस्टमर के पैसे थे, लेट्स से अली के पैसे थे, ठीक है, अली मेरा नहीं, मेरा कस्टमर है जिसने मुझसे पैसे लिए हुए हैं, चीजें ली थी मुझसे, कुछ चीजें खरीदी थी 100 रुपीज। तो जब वो 100 रुपीज की मुझसे चीजें ली, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं उसको क्या रिकॉर्ड करूंगा? एज अकाउंट रिसीवेबल, उसे मैंने रिसीव कर लिया, so it will be डेबिट। अब चाहिए था कि मैं इसको यहाँ पे 10 यहाँ पे लिखता और 10 यहाँ पे कर देता, लेकिन ये मैंने नहीं किया, मुझसे भूल गया, और मैंने ड्रॉर में पैसे रख दिए। तो अब ड्रॉर में पैसे ज्यादा हो गए, तो अब क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको 10 और इसको 10, ये एंट्री कर दी, कैश डेबिट, कैश ओवर एंड शॉर्ट क्रेडिट। फिर जब मुझे याद आ जाएगा तो इसको दोबारा क्रेडिट, इसको डेबिट कर दूंगा, और क्रेडिट इसको करना था, यहाँ से इसको कम करना था ना उसके पैसे, ठीक है, तो इसको फिर बाद में जब याद आ जाएगा या जब पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल ये एंट्री कर दे, कैश ओवर एंड शॉर्ट। सो कैश ओवर एंड शॉर्ट इज डेबिटेड फॉर शॉर्टेजेस। जब भी शॉर्टेज होगी, कैश ओवर एंड शॉर्ट डेबिट होगा, एंड क्रेडिटेड फॉर ओवरेजेस, जब ज्यादा हो जाए। यहां पे ज्यादा हो रहा था ना, तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया। ये बात क्लियर है सबको? इस बात को सब देख लीजिए, ये क्लियर है, ये एंट्री क्लियर है सबको? ये एंट्री सबको क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है इसमें?
जाए आगे। सर एक शॉर्ट की कर दें, मैं शॉर्ट की शॉर्ट की भी कर लें, चलें। अब इसके ऑपोजिट देखिए। अगर इसका ऑपोजिट हुआ, आपके पास वहां पर पैसे कम हैं, आप अपनी ड्रॉर को चेक करते हैं, ड्रॉर में 90 रुपीज है, और आप जब अकाउंट में देखते हैं तो अकाउंट में 100 रुपीज है। अब चाहिए कि दोनों बराबर हो जाए, तो अकाउंट को आपने कम करना है ना, कैश के अकाउंट को कम करना है। तो जब कैश को कम करते हैं तो कैश को क्या करना पड़ता है, कैश के अकाउंट को कम करना है। सो शुड आई डेबिट कैश और क्रेडिट कैश? क्रेडिट। सो कैश विल बी क्रेडिट। अब इसका डेबिट किसको देंगे? कैश ओवर एंड शॉर्ट। सर ओवर हो या शॉर्ट हो, हमने ओवर एंड शॉर्ट लिखा। ओवर एंड शॉर्ट, बस ओवर एंड शॉर्ट का एक ही काम बनना है, ओवर एंड शॉर्ट, कैश ओवर एंड शॉर्ट। और जब भी कभी शॉर्टेज होती है तो कैश ओवर एंड शॉर्ट क्या होता है? डेबिट और शॉर्टेज। और जब भी क्रेडिट हो रहा होता है, इसका मतलब क्या है? ओवर। ठीक है, सो कैश ओवर एंड शॉर्ट, इसको कर देंगे 10, इसको कर देंगे 10, एंट्री। ठीक है, इसकी एंट्री होगी अगर आपके पास शॉर्टेज आ रही है। ठीक है, ये शॉर्टेज की एंट्री होगी, ये ओवरेज की। क्लियर? ऑल ऑफ यू? यस सर। जाएंगे? यस ओके, लेट्स मूव ऑन। सर वो प्रेजेंटेशन आपने की नहीं शुरू में, मैंने आपसे पूछा, आपने किसी ने कुछ नहीं पूछा। चलिए करते हैं, थोड़ी देर में ये स्टेटमेंट कर रहे हैं दोस्तों। अब हमने कहा बैंक स्टेटमेंट। बैंक आपको आपके अकाउंट की स्टेटमेंट भिजवाता है, ठीक है, पीरियोडिकली भिजवाता है, या जब आपने उसको कहा भिजवाता है। या आप आजकल तो इतना आसान है, सुबह मैं चेक करना चाहता था मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मैंने डायरेक्ट उसको व्हाट्सएप किया और व्हाट्सएप पे डायरेक्ट ऑटोमेटेड रिस्पांस उनका आता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है। जी हाँ, ऐप में भी कर सकते हैं शो आप, वहां से भी आप देख सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज में भी शो हो जाता है। सो इट्स इजी ना, अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि वो मेल भिजवाएगा आपको और एक इतना बड़ा फड़फड़ाएगा, एक लेटर होगा उसके अंदर सारी चीजें लिखी, यू कैन डू दैट इजीली। सो बैंक स्टेटमेंट, ये वो स्टेटमेंट है जो बैंक आपको भिजवाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। शोज द बिगिनिंग बैलेंस ऑफ कैश, बिगिनिंग बैलेंस, अगर एक महीने की भिजवाएगा तो बिल्कुल पहले दिन बैलेंस क्या था, बिगिनिंग बैलेंस ऑफ कैश, बिगिनिंग बैंक बैलेंस, डिपॉजिट्स मेड, कितने पैसे इसके अंदर आए, चेक्स पेड, कितने पैसे इससे गए, अदर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, और इसके अलावा जो भी डेबिट है और जो भी क्रेडिट सब उसके अंदर लिखा होगा इन द मंथ एंड द एंडिंग बैंक बैलेंस, और फिर जो आखिर में आपका बैंक बैलेंस बैंक में पड़ा होगा वो आपको बता देगा। इज दिस थिंग क्लियर? यस सर। इज दिस थिंग क्लियर? यस। अब जरा एक क्वेश्चन आपसे पूछूं। अच्छा जी, सर इसमें चेक्स क्यों लिखा है? जो पैसे जा रहे हैं तो जरूरत नहीं कि वो चेक्स। डेबिट है। चेक्स पेड, मैं किसी को ट्रांसफर कर दूं पैसे। हाँ ट्रांसफर भी कर दें, वो बिल्कुल सही, डेबिट ट्रांसफर भी हो सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सकती हैं, लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर पर दोनों होती है ना, मतलब ट्रांसफर इन, ट्रांसफर आउट। लेकिन जब आप कहते हैं चेक्स पेड तो इसका मतलब है कि आपने इसमें से पेमेंट की, चेक्स पेड, ठीक है, पेमेंट। ओके, नाउ लेट मी आस्क यू समथिंग, इफ यू हैव अ बैंक अकाउंट, इफ यू हैव अ बैंक अकाउंट, तो आपके पास वो आपके बुक्स में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो कैसे शो होगा? क्या मतलब सर? मतलब जिस तरह मैंने ये कैश का अकाउंट बनाया, जी सर। तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका बैंक का बैलेंस कैसे शो होगा? हाँ, वो कैसे, किस तरह लिखा होगा, क्या होगा? बैंक अकाउंट, हाँ, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या? बैंक अकाउंट नेम, बैंक अकाउंट नेम, ओके, लेट्स से बैंक अकाउंट, किस बैंक अकाउंट है? अलाइड, एबीएल और सेविंग कार्ड जो भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, नंबर, ठीक, ओके। अब एक साइड पे क्रेडिट आ जाएगी, एक साइड पे डेबिट आ जाएगी। हाँ, तो क्या आएगा, लेट्स से आपके 1000 रुपए उधर पड़े हुए हैं बैंक एबीएल के अकाउंट, इस अकाउंट जिसका नंबर है CXXX, इसमें आपके 1000 रुपए पड़े, वो यहाँ पर कैसे शो होगा? सर उधर एक करंट अकाउंट सर वो तो हम वो तो ठीक है, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपका अकाउंट है जिसका नंबर ये है, वो एबीएल के अंदर है, अलाइड बैंक लिमिटेड के अंदर, उसका बैलेंस यहाँ पर आपकी बुक्स के अंदर कैसे शो हो रहा होता है? जिस तरह कैश का अकाउंट इस तरह शो हो रहा होता है, ये अकाउंट कैसे शो हो रहा होगा?
आपके 1000 रुपए पड़े हैं तो वो कहाँ पे लिखा होगा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, Debit. राइट हाँ लेफ्ट बस राइट लेफ्ट, मेरा राइट, आपका राइट, उसका राइट, लेफ्ट किसका? डेबिट क्रेडिट, एक चीज समझ आती है, डेबिट So debit. डेबिट Debit. डेबिट डेबिट Debit. डेबिट डेबिट सब डेबिट। Yes. एसेट है ना आपका, Yes. आपके जो बैंक में पैसे पड़े हैं आपका एसेट है, तो जिस तरह कैश आपका एसेट है जो आपके पास पड़ा हुआ है तो वो कैश, इसी तरह बैंक अकाउंट आपका एसेट है। 1000 रुपए आपके पास पड़े हुए हैं बैंक में, ये इसका आ गया ओपनिंग बैलेंस। जो चीजें आपने इसके अंदर और जमा की हुई, डिपॉजिट या आपके किसी ने ऑनलाइन ट्रांसफर आपको भिजवाई, ओके, वो यहां पर किस तरफ आएगी? Credit. क्रेडिट किसी ने मुझे भिजवाई वो भी Sir, वो भी debit होगी. वो भी डेबिट, Yes. वो ऐड हो रही है ना, किसी ने आपको पैसे भिजवाए वो आपके बैलेंस में ऐड हो रहे हैं, तो जितने ऐड हो रहे हैं आपके बैलेंस ज्यादा होता जाएगा, सो इट ऑल विल बी डेबिटेड। एसेट जब भी ज्यादा हो डेबिट होता है, Yes. ऑल विल बी डेबिटेड। मुझे अली ने मुझे भिजवाए, माज ने मुझे भिजवाए 50 रुपए, अली ने भिजवाए 1000 रुपए, यहाँ पे आते हैं और मैं उनके अकाउंट से कम करता हूँ, उन्होंने मुझसे चीजें ली हुई हैं, पैसे नहीं दिए, उनके अकाउंट से कम करता हूँ। वेल एंड गुड। अब अगर मैंने अपना एक बिल पे करना है और मैं उसको कहता हूँ स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस कि डायरेक्ट मेरे अकाउंट से चले जाए, ठीक है, Credit. क्रेडिट, आपका बैलेंस कम हो जाएगा ना इससे। Yes. ओके, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने का बिल था मेरा? टोटल तो 2050 रुपए है। 800 देने 800 रुपए चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ आ गया तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस वो क्या होगा? And how did you calculate that? You first add the side which is graded, so that means 2050. Then you write it over here, and then you subtract this one, so you will get the balance. Yes, See, sir. the closing balance is 1350. Done? Yes, sir. Done? 13 और 8 कितने होते हैं? वाओ Very bad for students of accounting and finance. नहीं sir, अभी ये Okay. So we all are humans that means we will make errors. Yes. पेपर में एरर करो फिर सर बताएंगे Okay. अच्छा, by the way, accounting का रिजल्ट आ गया ना? Yes. Who got A? सर बैलेंस शीट जिस दिन की थी मैं एब्सेंट था वरना मेरे बाकी 40 नंबर हैं फाइनल्स में 40? यस सर 50 out of 50 और किसके हैं? अब छोड़े, आप जरा स्टैंडर्ड हाई करके 50 out of 50 और किसके? मेरे भी शायद है इसमें। एक सेकंड में बता दो Okay. So that's good. That's the beauty of this subject, that you can actually get full marks. ठीक है, 100 out of 100 marks. Okay. यहाँ तक clear है। अब जरा एक और बात सुनिए, अब एक और बात सुनिए, अब गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। मेरे पैसे जो कि बैंक में पड़े हैं, यही पैसे 1000 रुपए, 1050, वो बैंक अपने पास कैसे ले रहा होगा? मेरे पैसे 1000 रुपए जो मैंने बैंक में रखवाए हुए, वो बैंक में अपने पास कैसे ले? फिर ये बात भी पूछूंगा आपसे कि फिर जब 50 और आए तो क्या हुआ, 100 और आए तो क्या होगा? अकाउंट का नेम क्या होता है? जो नंबर नहीं, जो नाम, जिस टाइटल से मैं अकाउंट खोलता हूं, अकाउंट टाइटल। लेट्स से माय कंपनी इज व्हाट, लेट्स से पाकिस्तान, चलेगा। तो अगर मैंने एबीएल में अकाउंट खोला है तो ईबीएल के पास ये अकाउंट आ रहा होगा नेस्ले पाकिस्तान CXX, ये अकाउंट है, ठीक, आगे। ओके, मेरे पैसे यहां पर कैसे लिखोगे आप? पहले सबसे पहले 1000 से शुरू करें, शुरू में 1000 रुपए है ना, जब मंथ स्टार्ट हुआ 1000 रुपए यहां पर कहां पे लिखे होंगे?
सर क्या नहीं डेबिट डेबिट मेरे 1000 रुपए बैंक के पास क्या लिखा होगा? क्रेडिट ना डेबिट डेबिट तो बस दो ही चीजें हैं। डेबिट 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 सर आपने रखवा है 1000 सारी सी बात है, ये 1000 रुपए है ना जो बैंक में पड़ेंगे ओपनिंग बैलेंस, ये यहाँ पर वो किस तरह लिखेगा अपने पास? अब ये मेरी बुक्स थी, डेबिट these were my accounts. Now this is the account of the bank. ये बैंक है account. Okay. जी क्लास, डेबिट और क्रेडिट. Of course. How many debits? How many credits? Okay. Of course. मैंने बैंक में 1000 रुपए रखवाए, ये मेरा एसेट है लायबिलिटी? एसेट. तो मैंने इसको लिखा डेबिट. एसेट्स डेबिट. मैंने बैंक में 1000 रुपए रखवाए, ये बैंक के लिए एसेट है लायबिलिटी? लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक ने ये पैसे मुझे वापस करने हैं. So that's the liability of the bank. So when you have an organization and there is a liability to pay back, तो आप उसको किस साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड. बस मैं कह ओपनिंग बैलेंस. ठीक है? अब गौर से देखिए, जब ये 50 रुपीस मेरे पास आए तो मैंने उसको डेबिट किया, बैंक ने उसको क्या किया? क्रेडिट. जब ये 1000 रुपीस मेरे पास आए थे तो मैंने इसको डेबिट किया था, बैंक ने क्या किया? क्रेडिट. जब मैंने बिल पे किया तो मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने उसको क्या कर दिया? डेबिट. आप समझ आ रही है? गॉट द आइडिया? इसका ऑप्शन. ओके, सो दिस इज वन थिंग, दिस इज डन. ये भी समझ आ गई. अब आगे चलते. अब अगर बैंक आपको आपका स्टेटमेंट भिजवाएगा तो वो उल्टी होगी, इसका मतलब वो उल्टी होगी. देखें, आप इसे बोलते हैं कि आई हैव अ डेबिट बैलेंस, तो बैंक बोलेगा कि यू हैव अ क्रेडिट बैलेंस. यही बोलेंगे ना बैंक आप. आप कहेंगे मेरा बैलेंस कितना है, तो अगर वो इफ यू आर अ लेमैन तो वो कहेगा 100 रुपए. ठीक है? और अगर प्रोफेशनल बंदा होगा तो वो बोलेगा 100 रुपीस क्रेडिट बैलेंस. ठीक है? 100 रुपीस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, आजकल नहीं होता, हो सकता है जहां पे आपके पास ओडी की फैसिलिटी. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओडी? Overdraft. So overdraft is what? What is overdraft? Overdraft. नहीं, draft. मैंने तो गाड़ी को बोला नहीं, overdrive means it's a overdraft. Overdraft. So what is an overdraft facility? Overdraft. इस आपकी जितने पैसे हैं आप उससे ऊपर ओवरड्राफ्ट, इससे ज्यादा पैसे आप इसमें से निकाल सकते हैं. तो अगर आपने आपके पास टोटल पैसे थे 1250 और बैंक ने आपको ओडी फैसिलिटी दी हुई है और आपको 1500 रुपए चाहिए, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा. तो वो आपको यही नहीं बोलता -250, वो आपसे बोलेगा 250 डेबिट बैलेंस. ठीक है? 250 डेबिट बैलेंस. पहले आप उसके क्रेडिटर थे बैंक के, अब आप बैंक के बन गए डेबिट. ठीक है? आप उसके डेटर बन गए. पहले आप उसके क्रेडिटर, आप बन गए डेटर. ठीक? गॉट द आइडिया ऑफ ओडी. लेकिन जब भी बैंक ओडी फैसिलिटी देता है, बैंक उसके साथ आपको कुछ ना कुछ चार्ज करता है एज इंटरेस्ट. जितने दिनों तक आपने वो पैसे बैंक को वापस ना दिए, बैंक उसके इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा. सर ये ओडी फैसिलिटी हर अकाउंट में होता है? नहीं, हर एक में नहीं होता. बिजनेस अकाउंट्स में होगा, और वो भी वहां पर जहां पे पहले से आपने वो फैसिलिटी अवेल की बैंक से. ठीक है? ओवरड्राफ्ट. ओके, ये बात भी क्लियर हो गई. सो नाउ यू नीड टू रिकंसाइल बैंक स्टेटमेंट्स. आपने अपने रिकॉर्ड को बैंक के रिकॉर्ड को रिकंसाइल करना है. हमने कहा था रिकंसाइल के हम लोग मिला के देखते हैं, चेक करते हैं कि बैलेंसेस बराबर हैं कि नहीं है. बैंक ने सारी चीजें लिखी हैं, मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं, सब कुछ सही है. बैलेंस आखिर में दोनों का सेम आना चाहिए. अगर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है कि मेरे पास 1250 रुपए हैं, तो बैंक के पास भी यहाँ पर 1250 रुपए यहाँ पर आने चाहिए एज क्लोजिंग बैलेंस. लेकिन नहीं आते. नहीं आते. क्यों नहीं आते? चेक करेंगे. ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की होती, या बहुत सारी चीजें आपने पहले रिकॉर्ड कर ली होती हैं और बैंक तक अब तक वो नहीं पहुंची. जिस तरह मैं एक चेक लिख के दूं किसी को, बिल तो उसी वक्त पे हो जाता है. लेट्स से बिल नहीं, मेरा एक सप्लायर है, वो कहता है पैसे दे दे मुझे. मैं कह रहा हूँ ठीक है यार, आपसे मैंने चीजें खरीदी हैं, ये ले पैसे, 100 रुपए का चेक दे दिया उसको. उसने जेब में डाला, उसने कहा यार 100 रुपए के चेक के पीछे क्या जाऊंगा उधर, बस छोड़ो, जब फारिग होगा बैंक जाऊंगा तो ले लूंगा.
जिस वक्त मैंने उसको 100 रुपए का चेक दिया उसी वक्त मैं यहाँ पर 100 रुपए यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास बैलेंस कितना बन गया 11। लेकिन वो बैंक नहीं किया, वो एक हफ्ते तक बैंक नहीं किया, तो यहाँ पर बैलेंस क्या रह गया? It won't be 1150. So that's why there are differences. That's why there are differences. ठीक है? Got the idea? Yes. Okay. That's why there are differences. So reconciliation of bank statement, it explains the difference between cash reported on bank statement and cash balance in depositors accounting records. तो आपने एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है जो कि आपका रिकॉर्ड हो गया डिफरेंस बिटवीन कैश रिपोर्टेड इन डिपॉजिटर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड, आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड, और बैंक का रिकॉर्ड हो गया बैंक स्टेटमेंट वाला, उन दोनों को रिकंसाइल मिलाना। क्लियर हो गया? स्टार्ट करें क्लास स्टार्ट करें, ठीक है? अब एक हम लोगों ने पढ़ी कैश ओवर एंड शॉर्ट की एंट्री जो थ्योरेटिकल से थोड़ा सा आगे चले गए, और एक अब हम ये काम पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस सबको मैं रब कर रहा हूं ताकि आपको नजर आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। नाउ these are the differences which are written. ये सारे वो डिफरेंसेस हैं जो कि आपके सामने आ सकते हैं। अब ये क्या क्या चीजें? बैलेंस पर बैंक, बैलेंस पर बैंक, व्हाट डज दैट मीन? बैलेंस पर बैंक, बैलेंस इन योर अकाउंट अकॉर्डिंग टू बैंक, बैंक के मुताबिक आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़ेंगे। बैलेंस पर डिपॉजिटर, आप डिपॉजिटर है ना, आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, सो यू आर द डिपॉजिटर। ओके, तो आपके मुताबिक बैंक में कितने पैसे, और इस बैलेंस पर डिपॉजिटर की बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि बैलेंस एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड या अकाउंटिंग बुक्स बोल सकते हैं, एज पर बुक्स बोल सकते हैं, ठीक है? ये डिफरेंट टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। ओके, स्टार्ट आप इस तरह करेंगे, आप इस तरह स्टार्ट करेंगे कि दोनों के बैलेंसेस लिख देंगे, ठीक है? दोनों के बैलेंसेस हो सकता है सेम ना हो, और ज्यादातर होगा कि सेम नहीं होंगे, ठीक है? क्वेश्चन में तो सेम नहीं होंगे और रियलिटी में भी सेम नहीं होंगे, अक्सर क्या ज्यादातर सेम नहीं होते, और जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें तो सारे के सारे सेम नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि वो क्वेश्चन है उसने तो बनाया इसीलिए कि सेम नहीं है, इसको सेम करके दो, ठीक है? ओके, आगे चलिए। डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट, व्हाट डज दैट मीन? डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट, आपने जो जमा इन ट्रांजिट क्या चीज होती है? एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह। मसलन आप गए, आपके पास, हमने कहा ना रोज शाम को पैसे बैंक में जमा करने, कहा था ना, आपने अपने बंदे को दिए कैश, ये लो यार जाके बैंक में जमा करो, वो किया, और बैंक 5 बजे बंद होता है और ये हो गए 5 मिनट का, 5 मिनट चलिए चलता है, कहता है यार ये चली करें, वो कहता है अच्छा यार मैं पैसे आपसे ले रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, लेकिन शायद एंट्री कल हो जाए। उसने रिसीव कर लिए, आपको उसकी रसीद दे दी कि हाँ रिसीव्ड, आपके अकाउंट में एंट्री कल करूंगा, बस अभी टाइम खत्म हो गया, अब नहीं कर सकता, ठीक है? इन ट्रांजिट। अगर बैलेंस डिपॉजिट इन ट्रांजिट, तो जो आपके पास बैंक ने आपसे कहा कि यार आपके मेरे पास बन रहे हैं टोटल 1565, आप कहते हैं यार मेरे पास कुछ और बैलेंस आ रहा है, तो फिर आपको चाहिए आप चेक करेंगे क्यों आ रहा है, तो आप कहते हैं हाँ यार वो एक चीजें थी, पैसे थे वो मैंने दिए थे, उसने कहा कि रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे, ये वो वाली चीज, ठीक है? तो इस बैलेंस के अंदर ये बैंक कह रहा है कि मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं ये पैसे भी जमा हो गए हैं, तो अब आपको बैंक ने ये अब तक जमा नहीं किए, क्या बैंक ने ये अब तक रिकॉर्ड किए हैं? नहीं किए ना, तो अभी इसके अंदर वो चीजें आप लोग ऐड कर लें, प्लस डिपॉजिट्स कर दिया यस प्लस 500 रुपए, आपने 500 रुपए भिजवाए थे जो उसने नहीं लिखे, तो मैं कहता हूं चलें लिख दिए। आगे चलें, आउटस्टैंडिंग चेक्स, ये कौन से चेक्स हैं? पेंडिंग, आउटस्टैंडिंग। जिस तरह मैंने कहा था कि मैंने उस कस्टमर को सप्लायर को चेक दिया, उसको मैंने कहा कि जाके कैश करा दो, उसने कैश नहीं कराया, उसने कहा यार फिर करा दूंगा, तो वो आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से माइनस किए,
क्या बैंक ने माइनस किए? नहीं। तो अब इसको माइनस कर देंगे। कर दें 100 रुपए माइनस कर दें। या तो आप इसको यू लेते हैं और या आप इसको यू लेते हैं, ठीक है? आपकी मर्जी, आप जिस तरह लिखना चाहें, ठीक है? अगर आप यू लिखते हैं तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं। ओके, ये भी हो गया। लेट्स मूव ऑन। बैंक एरर्स, यार एरर्स भी तो हो सकते हैं, इंसान है, ठीक? 575 नहीं, कोई और फिगर लेते हैं। 563 ओके, 563 रुपीस का आपका बिल था, बिजली का बिल है, ठीक है? आपने वो बिजली का बिल कहा कि मेरे अकाउंट से डायरेक्ट काट दो। वहां पे जो कैशियर बैठा था, जल्दी काम कर रही थी, लंबी लाइन लगी, ओ यार जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वो एकदम एंट्री करता है आपके अकाउंट के अंदर, और आपके अकाउंट के अंदर वो गलती से एंट्री कर देता है 365 पॉसिबल, या कर रहा है वो कर रहा है 536 पॉसिबल, पॉसिबल ना? यस सर। ठीक है, गलती हो सकती है, तो हो सकता है इस तरह की कोई गलती होगी। तो अगर कोई गलती हुई हो बैंक से, तो फिर उस गलती को रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा, उसको सही भी करना पड़ेगा। अगर आपका बिल था 563 रुपीस का, जो आपने इसमें से अगर बिल होगा तो वो आपके बैलेंस से क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। 563 माइनस कर देते, बैंक ने कितने माइनस कर दिए? 536। तो क्या बैंक ने सारे अमाउंट माइनस किया? नहीं। कितना अमाउंट उसने कम माइनस किया, ज्यादा माइनस किया? Around what? You have calculators, use calculators. एग्जाम में मुझे आप लोग कहेंगे अराउंड 10 रुपीस की एंट्री, अराउंड 27। सो 27 ऐड करो इस बैलेंस में या माइनस? माइनस। और अगर इसकी बजाय लेट्स से वो कर लेता 653, तो फिर 90 क्या प्लस, ये उसने 90 ज्यादा आपके पैसे निकाल लिए, तो इस 90 को यहां पर प्लस। गॉट द आइडिया? यस। बैलेंस। अब यहां पर आपके पास एक बैलेंस आ जाए, ठीक है? इसको बोलेंगे एडजस्टेड बैलेंस। ये बैलेंस इस बैलेंस के साथ बराबर होना चाहिए, लेकिन आपके पास भी जो बैलेंस है वो तो कुछ और है, लेट्स से कुछ और है, कुछ भी 1235। ये बैलेंस वैसे सेम नहीं आएगा क्योंकि मैं इमेजिनरी फिगर्स लेता हूं, जब सही क्वेश्चन करेंगे तो सेम। ओके, 1235। ओके, डिपॉजिट्स बाय बैंक। जब आप बैंक में पैसे रखते हैं तो बैंक आपको कुछ देता है, पैसे कुछ पैसे देता है, इंटरेस्ट नहीं देता? सर वो तो इंटरेस्ट देता है ना, लेकिन मुझे तो नहीं पता बैंक ने कितना इंटरेस्ट मुझे दिया है मेरे अकाउंट में, मैंने नहीं चेक किया। तो क्या आपने आपका जो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड था आपकी बुक्स के अंदर, आपने उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट जमा किया है? नहीं, लेकिन बैंक ने तो किया हो, तो आपको चाहिए कि आप इसके अंदर वो पैसे जमा कर। इंटरेस्ट जो आपको मिला उससे आपका अकाउंट ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होता है ना, लेकिन आपको नहीं पता था कि इंटरेस्ट मुझे बैंक ने दिया, ठीक है? आपके हिसाब से यार मेरे बैंक में होने चाहिए इतने पैसे, आप जाते हैं वो पैसे ज्यादा हो गए, किस तरह ज्यादा हो गए, चेक करो, ओ अच्छा बैंक ने इंटरेस्ट दिया, ठीक है? सो कितना इंटरेस्ट दिया? 38 ऐड कर। अब इसके ऑपोजिट भी हो सकता है कि बैंक ने आपसे कुछ चीजें सर्विस चार्ज काटे हो, आपने चेक बुक ली थी, बैंक ने उसके 100 रुपए काट लिए, आपको पता ही नहीं, आप कहते हैं यार मेरे तो अकाउंट में फर्क आ रहा है, फिर देखते हैं वो 100 रुपए का, तो क्या आपने अपने बैलेंस से वो 100 रुपए काटे हुए थे? नहीं, तो अभी इस 100 रुपए को यहां से माइनस कर, ठीक है? एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं NSF। ये क्या होता है? NSF नॉट सफिशिएंट फंड, ठीक है? जिस तरह मैं किसी को चेक देता हूं और वो चेक लेके जाता है और वहां पे पैसे नहीं होते, अकाउंट में पैसे नहीं होते, तो इसको बोलते हैं नॉट सफिशिएंट फंड्स। बैंक आपसे कहेगा NSF चेक। NSF चेक का मतलब ये है कि मुझे अली ने पैसे नहीं दिए, अली ने मुझे चेक दिया, अली ने जो मुझे चेक दिया मैंने अपने अकाउंट में उस पैसों को ऐड कर दिया, वो चेक मैंने भिजवाया अपने बैंक, जब बैंक में चेक किया बैंक ने भिजवाया दूसरे बैंक को, वहां पे गया उसने कहा इसके अंदर पैसे नहीं है, वापस आ गया, मेरे बैंक ने कहा कि भाई ये पैसे तो नहीं है, ये तो आपके अकाउंट में जमा नहीं हुए, लेकिन आपने
जी अली ने आपको चेक दिया था, आपने वो अपने अकाउंट में जमा कर दिए थे ना, कर दिए थे ना, अब उसको उसमें से वापस माइनस कर दे, माइनस कर दे। अली ने वो उस अकाउंट में कितने पैसे दिए थे, किसी को याद है? 1000 एनएसएफ चेक, जो भी आपको। आगे चले, बुक एरर्स। अगर बैंक एरर्स कर सकता है तो आप भी एरर कर सकते हैं ना। अभी तो इंसान हो सकता है कि आपने इस तरह का कोई एरर किया हो इस तरह, तो जो भी आपने एरर किया हुआ है उसको यहाँ पे प्लस माइनस कर दे। अगर आपने ज्यादा रिकॉर्डिंग कर दी है तो कम कर दे, कम रिकॉर्डिंग कर दी है तो ज्यादा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो बैलेंस आएगा, दीज बैलेंसेस शुड बी, इसको बोलेंगे एडजस्टेड बैलेंस। सर ये जो सर्विस चार्ज है, हाँ। इसके अंदर वो वाला चार्ज माइनस होगा जो हम अगर बैंक से निकालते हैं पैसे तो उससे। हाँ एग्जैक्टली, वो भी आपको पता नहीं होता ना। आप कहते हैं यार मैं फाइलर नहीं हूँ, आजकल तो ये है ना, जो फाइलर नहीं होता उसके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं। आप फाइलर नहीं है, आप बैंक से पैसे निकलवाएंगे 50,000 या उससे ज्यादा, तो आपके ऊपर चार्ज लग जाएगा, ठीक है। अब आपको तो पता नहीं है बैंक ने कितना चार्ज किया, आपने तो कहा मैंने 50,000 का चेक दिया, तो आपने अकाउंट से 50,000 माइनस कर देते हैं, लेकिन बैंक ने आपके अकाउंट से 50,000 भी माइनस किए और फिर माइनस चार्जेस भी माइनस किए। तो जब आपको पता चल जाएगा चार्जेस कितने हैं, तो अपने अकाउंट से उसको माइनस। और रिसिप्ट के भी आते हैं ना, किस चीज के? रिसिप्ट के उसके अगर एटीएम से सर हमको सर वो जब बैंक बैलेंस हाँ, चेक करते हैं वो जो आप एटीएम से उसे कहते हैं कि आपको बड़ा शौक होता है वो कागज निकालने का, ये कागज निकले इसके अंदर से, तो वो कागज के पैसे हैं, कागज पैसों पे आते हैं, मुफ्त में तो नहीं आते। तो बैंक आपसे 15 रुपए काटता है, 300 डेली 300 डेली से 3 रुपए का नहीं नहीं 15-18 इस तरह होगा। 3 रुपए में क्या मिलता है? नहीं सर 3 रुपए का पेंसिल ही नहीं मिली होगा। अभी तक कितने थे? सर एटीएम से जब आप निकाले तो वो आपको कैसे? अच्छा, मैंने आखिरी टाइम एटीएम इस्तेमाल किया होगा अपना 6 साल बाद, 6 साल पहले, 7 साल पहले। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने चार्जेस शुरू कर दिए मेरे घर, चार्जेस आई स्टार्टेड यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। सर तो हाँ, एटीएम बस ठीक है, कर दो। अगर मुझे चार्जेस काटने हैं, सर अगर कैश की जरूरत हो तो फिर उसके साथ कार्ड स्वैप कर देंगे। उसमें तो भी टैक्स जाता है, जीएसटी आजकल नहीं, कार्ड स्वैप करने का नहीं आता। अभी सर ये वो वेंडर, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो वेंडर देगा, आगे हम पढ़ेंगे। वो जो आपका जो कार्ड चार्ज करेगा ना, आगे पढ़ेंगे, इसको डिटेल में आगे। अच्छा, एक और उसका अल्टरनेटिव भी है। नाउ यू हैव इंटरनेट बैंकिंग ना, यू हैव एप्स, आप ऐप से कर लो, और हर एक के पास अकाउंट है, ठीक है। बल्कि लास्ट टाइम मेरे साथ इस तरह हुआ, somehow I forgot my wallet या पता नहीं क्या हुआ, और मैं गया सदर और वहाँ से मैंने कुछ चीज़ ली, और मैंने जब वॉलेट निकाला, वॉलेट था उसमें पैसे, तो अब मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि यार क्या मेरे पास वॉलेट में 300 रुपये नहीं है। बहुत अजीब बात है ना कि आप गाड़ी में आए और आप आए कोई चीज़ लें और आपसे वो कहे पैसे दो और आप मुझे कहें 300 रुपये नहीं है, सॉरी मेरे पास। तो मैंने उससे कहा यार वेरी सॉरी मेरे पास 300 रुपये नहीं है, आप अपना अकाउंट नंबर मैं आपको किसी पर ट्रांसफर करूँ, ठीक है। मैंने उसी वक्त ट्रांसफर किया। आजकल हर किसी के पास जैश कैश, इसी पैसा। सर लेकिन कभी कभी इंसान बहुत खराब हो सकता है। सर मेरे साथ होता है अक्सर, उधर एक रोड पे जा रहा हूँ, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो हाँ, गया, उस केस में कोई पैसे ही नहीं है। लेकिन आजकल पेट्रोल पंप्स वाले टेक कार्ड्स। नहीं ना सर, एक रोड पे नहीं अब मैं तो वंस अगेन मुझे अब ये भी याद नहीं कि आखिरी बार मैंने पेट्रोल के पैसे कब दिए थे, मैं तो कार्ड इस्तेमाल करूँ, ठीक है। जाएं पेट्रोल डलवाएं, काम दे, ठीक है, डायरेक्ट डेबिट हो जाएगा, रसीद अपने पास रखें, आखिर में टैली भी कर सकते, ठीक है। सो नाउ इट्स मोर कैशलेस, और ये तो अभी ने स्टार्ट हुआ। मुझे याद है कि जब आज से ऑलमोस्ट 12 इयर्स बैक जब मैं पढ़ रहा था इंग्लैंड में, तो वहां पर मेरे जेब में कोई पैसे नहीं थे, ठीक है। बस में कार्ड, और बाकी हर जगह पे कैश मशीन्स, दे कॉल इट कैश मशीन्स इंस्टेड ऑफ एटीएम्स, उन पे पैसे भी नहीं है। आप जो आप कह रहे हैं ना कि पैसे काटते हैं 15 रुपए 10 रुपए, वहां पे चार्जेस नहीं है। जिस जगह से आपने करने पैसे निकलवा, या फिर जो वेंडर है छोटी भी शॉप होगी उसके पास मशीन काट दे,
इंडियन में हमने 20 किया था तो मास्टर्स किया था नहीं मैंने PhD। 20 ओके दिस इज डन, ये भी क्लियर। ओके लेकिन ये रिकंसिलिएशन जितनी भी है, एक बात याद रखिए, इन सब के लिए आपको करना पड़ेगा एक एडजस्टिंग, क्योंकि देखिए आप चीजों को अपने अकाउंट में प्लस माइनस कर रहे हैं ना, तो हर प्लस माइनस जो आपके अकाउंट में होगा उसके लिए यू नीड टू डू अ जर्नल एंट्री, आपको इसके लिए जर्नल एंट्री। ओके वन this is an example which we need to do, लेकिन somehow we are short of time, तो ऐसा करते हैं, मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ लेकिन उसकी डेडलाइन नहीं देता, आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे पिछले जितने हैं वो कंपल्सरी कर देते, बल्कि मैं आपको 2 असाइनमेंट्स असाइन करता हूँ। एक वो असाइनमेंट जो इससे पिछला पोर्शन, वो तो हम कर चुके हैं, कंफर्म है। इसकी मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई, सिर्फ जनरली करवाया, ठीक है। इसकी आपको असाइनमेंट दूंगा लेकिन उसकी डेडलाइन नहीं, या उसकी डेडलाइन दे दूंगा नेक्स्ट वीक, तो आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सबमिट करना चाहते हैं कर दीजिए, आपकी मर्जी। अभी नहीं करते, नेक्स्ट क्लास के बाद सबमिट करते हैं तो भी आपकी मर्जी, ठीक है। मैं आपको उसके लिए नेक्स्ट क्लास तक का टाइम दे दूंगा, लेकिन एक असाइनमेंट आपको मुझे सबमिट करनी पड़ेगी वीकेंड पर ही, बल्कि दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द वीक, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम, फिर तो ठीक है, तो कल हम इसको कर लेंगे और कल ही हम इसकी प्रैक्टिस भी कर देंगे, हम इसकी असाइनमेंट भी दे देंगे, तो एक ही असाइनमेंट, ठीक है। सो सॉरी, देयर विल ओनली बी वन असाइनमेंट। नाउ यू कैन पॉज द